بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ 6 ستمبر پاکستان کا قومی دن ہے۔ بھارت نے 1965 میں اس دن ہمارے وطن پر حملہ کیا۔ ہندوستان ہمارے وطن پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری نڈر فوج نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ہم اس دن اپنے بہادر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت سے سپاہیوں کو ان کی بہادری کی وجہ سے نشان حیدر دیا گیا۔ یوم دفاع کی نسبت سے ہی آج گورنمنٹ ہائی اسکول بیروالا میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور 6 ستمبر کا دن جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام سے ہوا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی گئی۔ بچوں نے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلو پیش کیے، اور اس کے لیے ایک خصوصی پروگرام بھی ترتیب کیا گیا، کوئز پروگرام، جو کہ یاسین بھٹی صاحب نے پیش کیا۔ اس پروگرام کی خاص بات، آج کے پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ آرمی پرسن جناب انور علی صاحب ریٹائرڈ، جنہوں نے خصوصی شرکت کی اور آخر میں بچوں کو انعامات بھی تقسیم کیے۔ یہ تمام پروگرام جو تھا وہ ہیڈ ماسٹر سگول ہزا جناب آصف علی بھٹی صاحب کی کاوش سے ترتیب کیا گیا، اور انہی کی محنت اور انہی کی لگن اور ان کی شب و روز محنت کا نتیجہ تھا، جو کہ آج ایک اہم اور بہترین پروگرام ترتیب کیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور آگے پروگرام کو آپ دیکھیں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ یا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ عشق شہ بدہاں سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں۔ عشق شہ بدہاں سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں۔ نام محمد کہ میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن سے درستہ وطن، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا۔ ہر دل کی آواز، ہر دل کی آواز، پاکستان پاکستان پاکستان۔ آغاز کی داستان سبھی، ایک ہی اپنا گھر پاسبان سبھی، ایک ہی سوچ ہے، ایک پہچان ہے، اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے۔ کھائی ہے قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا۔ ہر دل کی آواز
کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ علی احمد کو کہ وہ 6 ستمبر کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے بتائیں کہ ہم جو ہے یوم دفاع کیوں مناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جناب صدر، میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پروقار تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ صدر علی وقار 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے جب دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ارض پاک پر حملہ آور ہوا مگر جرأت، بہادری، ہمت اور عزم کی چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ جرأت اور بہادری کے واقعات نے 6 ستمبر 1965 کو جنم دیا۔ جناب صدر، پختہ ارادے اور ہمت سے لڑنے والے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب علی وقار، چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا۔ میرے ملک دشمنوں کا خیال تھا کہ افواج پاکستان کو کھاتے نیند میں دبوچ لے گا، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ میری سرحدوں کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے سجدے میں گر کر اپنی شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں اور پاکستانی مائیں ایسے بیٹوں پر فخر کرتی ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فلاد۔ جناب صدر، جب بھارت نے بزدلی دکھاتے ہوئے رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کیا تو ہمارے شیر دل جوا مجاہدین اسلام افواج پاکستان نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ان کو اپنے گھر میں محصور کر دیا۔ یہ 17 دن چلنے والی جنگ میں ہمارے فوجی جوانوں نے وہ جوہر دکھائے جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جناب صدر، میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے اپنے سے زیادہ تعداد اور زیادہ حربی ہتھیاروں کے باوجود ان کا ڈٹ کر مردانہ وار مقابلہ کیا اور ان کے بے شمار فوجیوں کو جہنم واصل کیا اور انہیں وہ سبق سکھایا کہ جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کبھی کمانے کے لیے اور وطن سے محبت کے اظہار کے لیے میں دعوت دوں گا ساجد علی کو کہ وہ آئیں اور وطن سے محبت کا اظہار ملی نغمے کی صورت میں کریں۔ ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان، ہر پاکستانی ہے ہمارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان۔ یہ تھے ساجد علی جو اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے تو جھکتے تھے ان کاندھوں پہ، سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے۔ ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا، پہلے تو ٹھیک سوچائی کر تو پھر سوچ کے بعد آیا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، سب سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔
शुक्रिया इन नन्हे मुन्ने बच्चों का और इनको तैयारी करवाने वाले असातिज़ा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, सर उसे बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। जनाब सदर मोहतरम मुतालिका और मेरे हम साथियों, आज मुझे जिस मौजूद पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है इसका अनुमान है यौम-ए-वफा पाकिस्तान। 65 की जब जंग हुई, 65 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, 65 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया तो दबने दम गया बातिल, आया तो दबने दम गया बातिल, आया तो झुकने झुक गया बातिल, आया तो मिलने मिल गया बातिल। कत्ल हुआ दिल खुद, कत्ल हुआ दिल खुद, कत्ल हुआ दिल खुद वहाँ कातिल बजा हक का, बजा तो बातिल, इन्नल बातिल कान और बाहुका। सदैव विकार हिम्मत और हिम्मत जुर्रत और आगे से मेरे शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की तारीख को यौम-ए-दिफा पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। अली मतलब चश्मा फर्क ने वो दिन में देखा जब मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंकर और तोपों की तोड़ लेकर मेरे मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर तोड़ा। मेरे मुल्क दुश्मन जहाँ चौधरी का ये हमें क्या था तो वो हमारे पाकिस्तान को हाथ नींद में डुबो जाएगा। वो ये ना जानता था, इसको खबर न थी कि मेरी सरहदों के वापस मेरी मिल्लत के वाले पिछली रातों को जाकर रब्बे कायनात के रसूल शहादत की दुआएं मांगा करते हैं। रब्बे वाला मेरी मिल्लत के वापस हिम्मत और जुर्रत का बरादा होगा और मिल्लत के मुकाबले दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। शहादत के मुतवाशी मेरे शायर खुले और कामन सकेंगे दुश्मन के 5 जंगी जहाजों को दहेज डाला और बता दिया शेर की किसान में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। और ललकारते हुए भले हमें तुम दिखाते हो नीचा जहां से, हमें तुम दिखाते हो नीचा जहां से, असल में तुम्हें रात इज्जत नहीं है। हमें तुम दिखाते हो नीचा जहां से, असल में तुम्हें रात इज्जत नहीं है। कहो तो कोई हो रोक दिखा दे, अकेली हमने शराफत नहीं है। मैं ये फख्र से कहता हूँ हम गज़नवी हम मुश्किल, हम गज़नवी हम मुश्किल, तुम होर हो हम होर हैं। ए सोमनाथ ए बरहन तुम होर हो हम होर हैं। हम गज़नवी हम मुश्किल, तुम होर हो हम होर हैं। ए सोमनाथ ए बरहन तुम होर हो हम होर हैं। ये थे मोहम्मद मुमताज़ जो आपके सामने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और वतन से दावत सुखन दूंगा सलमान सत्तार को कि वो आए और अपने जज्बात का इजहार और यौम-ए-दिफा और 6 सितंबर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। सलमान सत्तार। अपने लहू से सजते थे जब सादे सलासल बजते थे, हम अपने लहू से सजते थे। ये रस्म अभी तक जारी है, ये रस्म अभी भी बाकी है। मौजूद उसादत और मेरे हमजमान साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यहाँ सन 1965 की जंग की फतह का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जंग हमारी कामयाबियों की तारीख का बाब है। 6 सितंबर सन 1965 को हमने न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि हमने अपने वतन और खुदमुख्तारी का कामयाबी के साथ दिफा किया। हमने पाकिस्तान की हर के लिए अभी जाने कुर्बान की। हमने उन्हें न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी शिकस्त दी। MM आलम ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। मेजर अजीम भट्टी इस जंग में बहादुरी की अलामत बन गए। लेकिन इन मुबारक पर हमें अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। कश्मीर में आज़ादी की जंग कई दहाइयों से जारी है। हमें कश्मीर के मसाइल को समझना चाहिए और हर पाकिस्तानी तजल्ली से शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से यकीनन अफराद के कौमों के मुस्तकबिल समझते हैं। इन्हीं की ताबिशों से आसमान फिक्र दानिश पर, इन्हीं की ताबिशों से आसमान फिक्र दानिश पर नई सुबह बिखरती हैं, नए सूरज उतरते हैं। दुश्मन भी तो
دوبارہ دشمن بھی تو نے اس قوم کو اتارا رے ہم بھی گزارا رے ہم بھی گزارا یاسین بھٹی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام انہوں نے ارینج کیا ہے تو وہ آ کے جو ہے بچوں سے یہ پروگرام جو ہے وہ کنڈکٹ کریں. یہ یاسین بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. معزز گرامی قدر مہمان گرامی رئیس مدرسہ صاحب کرام اور السلام علیکم. میری سرحد پہ پھیرا ہے ایمان کا، میری سرحد پہ پھیرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین خون میرا وطن. عزیز طلباء، آج 6 ستمبر ہے اور یوم دفاع کے طور پر ہم اسے منا رہے ہیں. اس سلسلے میں کوئی پروگرام شروع کرنے جا رہا ہوں میں. یہ ہماری 3 گروپ ہیں، اے گروپ، بی اور سی. ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا. سوال و جواب کا یہ سیشن ہے. تو ایک سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہے، جو زیادہ جوابات دے گا اس کے نمبر زیادہ ہوں گے اور وہ ون کر جائے گا. تو سب سے پہلے اے ٹیم سے میرا سوال ہے، یوم دفاع پاکستان سے کیا مراد ہے؟ یوم دفاع پاکستان سے مراد ہے کہ یہ اس دن کی بات ہے 1965 کی، جب دشمنوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو عوامی افواج اور عوام نے مل کر دشمنوں کا سامنا کیا. بی گروپ سے سوال ہے، بھارت نے پاکستان پر حملہ، اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. والسلام علیکم. ناظرین، یہ تحریر قاسم علی شاہ صاحب نے یوم دفاع کے موقع پر لکھی ہے. شوق شہادت، بہادری، جان نثاری اور وطن سے محبت کا یہ منظر انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں دیکھا. 6 ستمبر کا وہ دن جب دشمن اپنے جنگی ہتھیار اور طاقت کے غرور میں مست ہو کر لاہور پر چڑھ پڑا اور اعلان کیا کہ اپنی صبح لاہور کی سڑکوں پر وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ٹینکوں کی سلامی دی جائے گی اور لاہور جم خانہ میں پارٹی کرتے ہوئے پوری دنیا میں یہ اعلان کرے گا کہ ہم نے اسلام کے قلعے کو فتح کر لیا ہے. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ جس قوم سے ہے اس کے پاس اسلحہ اگرچہ کم ہے، لیکن وطن کی حفاظت میں ان کی جان نچھاور کرنے کا جذبہ آسمان کو چھو رہا ہے اور اس جذبے کی حیبت سے پہاڑ بھی سمٹ کر رئی بن جاتے ہیں. شہیدان وطن کتاب کے مصنف ایم آر شاہد اس بارے میں لکھتے ہیں، 6 ستمبر کی رات 3:45 پر دشمن کی جانب سے بھاگا کر ایک گولہ آ کر گرا. یہ جنگ کا آغاز تھا. اس موقع پر ایس جے سی پی پوسٹ پر موجود پلاٹون کمانڈر محمد شہراز چوکنا ہو گیا اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی. ہمارے پلاٹون کمانڈر محمد شہراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا جو ستمبر کی تاریخی جنگ کی ابتدا تھی. لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستے بم پھینکنے شروع کر دیے. اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا لیکن ہمارے جوابوں نے اس کا دلیرانہ مقابلہ کیا. جب پاک فوج کو دستے بموں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی ریل پر تمک کے پاس آتے اور سپاہیوں کو بم تھماتے تھے. اسی اسلام میں پلاٹون کمانڈر محمد شہراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنوبی ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے. انہوں نے سعودی عربیہ میں پاکستان آرمی کی نمائندگی کی اور وہاں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ روزہ مبارک پر جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1965 میں، جیسا کہ آپ نے مختلف بچوں کی تقاریر میں سنا، پچھوڑوں کے مقام پر جو ٹینکوں کا مقابلہ ہوا، ٹینکوں کی جو جنگ ہوئی، وہاں پر بھی انور علی صاحب جو ہے وہ اس جنگ میں شانہ بشانہ شریک رہے۔ اور اسی طرح 1971 میں مشرقی پاکستان میں انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب انور علی صاحب۔ کلیپنگ۔ پیارے بچوں، میں آپ سے مل کر اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں اسی طرح ہی اسکول کے اندر 13 سال کی عمر میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور میں جنگوں کی کتابیں پڑھتا تھا زیادہ۔ مجھے اتنا شوق تھا کہ میں بھی ایک جنگ لڑ کر دیکھوں، جذبہ جنگ، جذبہ جہاد اور اسلام کی جنگیں جتنی ہوئی ہیں نا، میں اس کی کتابیں پڑھتا تھا اور میرے دل کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا کہ یا خدایا مجھے بھی یہ رتبہ دے دینا جو لوگ شہید ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر وضاحت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر کبھی قبول نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقل نہیں دی ہے کہ ہم مردے کو زندہ سمجھیں، لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ آپ کی نظر میں مرا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے زندہ ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایک شہید کو دفن کیا تھا اور 28 سال کے بعد اس کو ہم لینے کے لیے گئے تھے کیونکہ وہ ہندوستان کی زمین میں دفن کیا ہوا تھا۔ اور 28 سال کے بعد جب ہم نے جس شہید کو دفن کیا تھا اس کو نکالنے کے لیے ہمیں سلیکٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے وہ جگہ بتانی ہے جہاں پر وہ شہید ہوا۔ مشرقی پاکستان آپ کو نہیں پتہ، یہ پاکستان 2 حصوں میں تھا۔ ایک کا نام تھا مغربی پاکستان جس میں ہم بیٹھے ہیں ابھی، ایک تھا مشرقی پاکستان جو پاکستان کی حدود سے، سمندری حدود سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور تھا۔ 1500 کلومیٹر دور جا کر ہم نے وہ جنگ لڑی تھی ایک، جس کا نام تھا مشرقی پاکستان 71 کی۔ 16 دسمبر 1971 کو بھارت نے اس علاقے کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہ غداری کی وجہ سے اور ہماری نفرتوں کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ سب سے پہلے میں 1965 کے واقعے بتاؤں گا، پھر آپ کو اس شہید کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے اس کو زندہ باہر نکالا۔ پاکستان پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فوج والے NCC سکھاتے تھے۔ NCC ڈگری کالج بہاول نگر میں بچوں کو 12-13 سال 14 سال کے بچوں کو فوجی ٹریننگ دیتے تھے اور وہ فوج میں لے جاتے تھے۔ آج کل اس کو ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے اوپر غیر ملکیوں کا دباؤ ہے کہ ان بچوں کو جہاد اور جنگ کی تعلیم اور جنگ کا شعور نہ بتایا جائے۔ جس قوم کے ذہن سے یہ جہاد اور جنگ نکل جاتا ہے وہ قوم شکست کھا جاتی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں جہاد کو نہیں نکالنا۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جہاد خود لڑے ہیں، ہم ان کی سنت کو پورا کریں گے، انہوں نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ نمبر 2، جذبہ جہاد اور جذبہ حب الوطنی، یہ دل سے نہیں نکالنا۔
आप ख्वाह नए दौर में आ जाएं, कंप्यूटर के दौर में आ जाएं, ये जो चीज़ें निकली हैं इसके अंदर जहाद नहीं है। आप इंटरनेट खोलें, बड़े बड़े मोबाइल खोलें, किताबें खोलें, ये जहाद का जिक्र बराए नाम है और आपको शऊर आपके जहन से ये निकाल रहे हैं। मगर आपने अपने जहन से ये जहाद और जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं निकालना। क्यों कि ये जो मुल्क है ये लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद मार्का वजूद में आया था। ये पाकिस्तान प्लेट में रख कर इस हिंदू ने नहीं हमें दिया था, ये प्लेट में रख कर नहीं मिला था कि ये तोहफ़ा ले लो। इसके लिए 14 अगस्त 1947 को ट्रेनें भर भर कर लाशों की आई थी हमारे बुज़ुर्गों की। आपको नहीं पता, आप अपने किसी बुज़ुर्ग से पूछ लेना, ये किताबों में नहीं लिखते हैं, नहीं लिखने देते हैं। ये इन लोगों की कमज़ोरी है बेटा, आप अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है ये बात। मैं 14 साल या 13 साल की उम्र में था तो जब मेरे अंदर कैडेट में होता था स्कूल के अंदर, जिसको कैडेट कहते थे, एनसीसी में करता था निकर पहनकर, तो अचानक पता चला कि ये बच्चों को फ़ौज वाले ले जाते हैं और वो ट्रेनिंग देकर ना फ़ौजी बनाते हैं। तो मुझे अल्लाह ने वो मौका दिया और मैं स्कूल से पाकिस्तान की आर्मी में बॉय भर्ती हो गया। बॉय कहते हैं बच्चों को, आज नहीं वो भर्ती करते हैं, आज 18 साल से कम को नहीं लेते हैं। वो मैं बॉय के दौरान ही अल्लाह ताला ने एक मुझे नसीब दे दिया, 1965 की जंग मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया। वो जंग जब शुरू हो गई 6 सितंबर को, हम उस वक़्त ट्रेनिंग कर रहे थे और मैं वॉलंटियर होकर गया था कि मैं तकरीबन गन चलाने का मास्टर हो गया था। मैं ना एसएमजी को सीख चुका था। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मैं एसएमजी चला लेता हूँ, मैं बच्चा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक हुब्बुल वतनी है, मुझे बॉर्डर के ऊपर ले जाओ प्लीज़। मैंने उसके अंदर हाथ डाले कि मुझे बॉर्डर के ऊपर ले जाओ, मुझे बॉर्डर के ऊपर जाने का शौक़ है। अगर गोली लग जाती है तो मैं शहीद हो जाऊंगा और शहीद जन्नतुल फरदौस में जाता है, उसका हिसाब किताब नहीं है। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक के अंदर वज़ाहत के साथ फरमाया है। और दूसरा, अगर मैं बच गया तो गाजी हो जाऊंगा। गाजी भी शहीद के रुतबे के बराबर होता है, ये भी आपके नॉलेज में दे दूँ। गाजी या शहीद ये दो ही चीज़ें हासिल होती हैं। लेकिन वो कमांडर ने मेरी बात को फॉलो करते हुए, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज बहुत छोटी सी थी, फ़ौज में लोग नहीं जाते थे, नया नया पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, शऊर नहीं था फ़ौज के बारे में। वही लोग फ़ौज में थे जो इंडिया से आए थे, उन्हीं के बड़के थे जो फ़ौज में थे। और जनरल मोहम्मद अयूब खान की हुकूमत थी जो एक फ़ौजी का बेटा था। अयूब खान बाद में फील्ड मार्शल बना, पाकिस्तान का सदर बना। उसका वालिद साहब सूबेदार साहब थे, सिपाही थे और ये हमारे उस वक़्त सरबराह थे मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के। और अचानक जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो मैं तीसरे दिन, ये मेरी रेजिमेंट जो थी ना वो रिसाला थी। रिसाला कहती हैं टैंक चलाने वालों को, रिसाला फोर्स। टैंक उस वक़्त हमारे पास थे थोड़े, क्योंकि हिंदुस्तान ने जब बंटवारा हुआ था ना, हमें थोड़े से टैंक दिए थे हमारे हिस्से में जो दिए थे। हमने अभी नए टैंक नहीं बनाए थे, ना ही ख़रीदे थे। भारत के पास बरतानिया के छोड़े हुए टैंकों के लश्कर थे। तो भारत ने जिस मुकाम पर मैं था उस जगह का नाम था चिविंडा। चिविंडा एक ऐसा बॉर्डर था कि वहाँ से हिंदुस्तान ये शकरगढ़ और सियालकोट से होता हुआ कश्मीर की कंट्रोल लाइन को वो काटता था। वो कंट्रोल का लाइन जब हमारी कट जानी थी, ये जो आज जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये हमारे हाथ से चला जाता क्योंकि हम बेबस हो जाते। तो कश्मीर ने इसको हासिल करने के लिए, इस कंट्रोल लाइन को पकड़ने के लिए एक ऐसा हमला रात को सोचा कि पाकिस्तान के पास तो चंद टैंक हैं और थोड़े से फ़ौजी हैं और ये इलाका भी साफ़ है और वो टैंक वो ज़मीन को बर्दाश्त भी कर लेता है। यानी हर टैंक ना ज़मीन के ऊपर बर्दाश्त नहीं करता। कोई रेत का टैंक होता है वो रेत में चलता है, कोई पत्थर के ऊपर चलता है, कोई इस ज़मीन के ऊपर चलता है, कोई पानी में भी चलता है। ऐसे ऐसे टैंक होते हैं। तो उनके जो टैंक उनके पास जो थे ना, भारत के पास, वो इस इलाके को शूट करते थे। तो उन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, इतने ज़ोर का टैंकों का हमला रात के टाइम के ऊपर चिविंडा के मकाम के ऊपर कर दिया। तो हमारे पास तो 600 टैंक क्या 600 सिपाही नहीं थे कि जो हम उसको रोक लेते।
तो क्या प्रोग्राम बनाया गया कि इस टैंकों को रोकने के लिए क्या किया जाए। वहाँ पर जो हमारे कंपनी कमांडर थे उन्होंने कहा कि बम अपने सीने के ऊपर बांध लो, क्योंकि अल्लाह की राह में जान देनी है, गोली से भी जाना है और टैंक के नीचे के लेट कर भी टुकड़े टुकड़े हो जाना है। तो हमारे जवानों ने वॉलंटियर होकर आगे आगे बढ़कर कहा कि पहले मुझे ये टैंक के नीचे डालने के लिए मेरे सीने के ऊपर बम बांधो। बम ये नहीं होते हैं जो ऊपर से गिरते हैं, उसको माइन कहते हैं। जो ऊपर से जब वजन लगता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, और वो टैंक के नीचे जब मिट्टी के नीचे सिपाही लेटेगा ना, तो टैंक की चैन जब ऊपर से गुजरेगी तो वो दबाया जाएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। जब ब्लास्ट होएगा तो नीचे लेटने वाला जवान टुकड़े टुकड़े हो जाता है, मट्टी से उसके टुकड़े भी नहीं मिलते हैं। तो 600 टैंकों को रोकने के लिए 600 आदमियों ने कुर्बानी देने के लिए आवाज़ उठाई कि पहले मुझे बांधो बम, पहले मुझे बांधो बम। तो जब बम बांध दिए गए, मायने बांध दी गई, सीने के ऊपर जैकेटें लगा दी गई हैं, और इस तरीके से वो आए 600 टैंक लेकर, सीधा नहीं आए हैं, वो किसी तरीके से अंदर दाखिल हुए हैं। तो उन्हीं के हिसाब से लाइन बाई लाइन सिपाहियों को लिटाया गया, ऊपर मट्टी डाल दी गई कि जैसे टैंक आएगा आपने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देनी है। और शहीद होने वाले को ज़रूरी नहीं है कि वो करना पड़े, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है कब मेरे ऊपर ये वार हो जाएगा, कब गोली लगेगी, वो तो है ही शहीद। तो शहीद को तो करना कराने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती है, वो तो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है। तो जब टैंक हमारे जवानों के ऊपर से गुजरने शुरू हुए तो देखा हिंदुस्तान ने कि ब्लास्ट होने शुरू हो गए टैंक। तो वो जो पीछे वाले टैंक थे ना, वो छोड़कर भाग गए कि आगे नहीं जाना। ये क्या हो गया, क्योंकि ये जमीन के अंदर तो बम पड़े हुए हैं। जब एक ड्राइवर को सारा पता कि आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो गई है तो पीछे वाली गाड़ी भी ब्लास्ट होगी, तो तीसरी गाड़ी नहीं जाएगी, तीसरी गाड़ी छोड़कर भाग जाएगा ड्राइवर कि ये तो गाड़ियां तबाह हो रही हैं। तो उन 600 टैंकों का हमला रोकने के लिए पाक फौज के बच्चों ने, जो बिल्कुल यंग बच्चे थे उस वक्त, भर्ती हुए थे, वॉलंटियर होकर गए थे कि हमें दे दो, हम बम बांधेंगे। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस हमले को हमारे ज़रिए, हमारी सोच के ज़रिए ऐसी बहादुरी की मिसाल कायम की है चुंडा के मकाम पर कि दुनिया की तारीख में ये बात लिखी गई है। लेकिन आज के दौर में हमारी तारीख से ये बातें हटा दी गई हैं ताकि बच्चों को पता न चले। एक बच्चा तो पटाखा नहीं चला सकता, एक बच्चा तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी ऐसा मौका हो जाए तो सबसे पहले आपने इस पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी देनी है। जान की कुर्बानी किसी भी शक्ल में फौज लेती है, ये धरती लेती है, ये धरती माँ लेती है। हम इस धरती का अनाज खाते हैं, ये हमारी माँ है, हम अनाज खाते हैं इसका, तो इसकी हिफाजत करनी। जैसे आप अपनी माँ घर में बैठी है, कैसे हिफाजत करते हैं। हमारी माँ को कोई गाली नहीं दे सकता, हम ईंट पर ईंट बजा देते हैं। तो इसके लिए दुश्मन हमारी इस धरती को कब्जा करने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंगें बनाता है, हमले करता है, दहशतगर्दी फैलाता है। आपने किसी भी दहशतगर्द तंजीम का साथ नहीं देना। आपको कोई गड़बड़ा है तो उसकी बातों को नहीं ध्यान देना, बल्कि हुकूमत के नुमाइंदों को बता देना कि ये आदमी हमें गलत रास्ते को लगा रहा है। तो यही शान है पाकिस्तान के लिए। आप आज बच्चे हो, कल जवान हो जाओगे। तो जज्बा जहाद और जज्बा हुब्बुल वतनी को दिल से नहीं निकालना। जहाद अगर जानना है तो हमारे नबी पाक ने जो खैबर के मैदान में, बदर के मैदान में और खंदक के मैदान में जो जंगें लड़ी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांत मुबारक को खुद शहीद करवाया, अपने चच्चे का सीना ठीक करवाया। तो उस जहाद को नहीं बोलना, वही हमारी ताकत है। जहाद ख़त्म कर दोगे, जहाद भूल जाओगे तो ये धरती हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर कुफार और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसके लिए जहाद को दिमाग में रखना है, इसको दिमाग से नहीं निकालना। जहाद, जब तक जहाद नहीं करोगे, ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना, ये हुब्बुल वतनी के साथ जहाद करती है। ये जहाद फीस भी नहीं रहा है, हम इसका पैसा नहीं लेते हैं। मैंने 3 जंगें लड़ी हैं अपने हाथों से, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, बस उन्होंने एजाज़ देते हैं आपको दिखाने के लिए, आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए कि ये एजाज़ मिलते हैं। देखो सामने एक 5 स्टारों वाला कोने वाला एक स्टार लगा हुआ है,
ये किसको मिला हुआ है? ये जो निशान हैदर लेता है वो तो कब्र में चला गया बेटा, ये उसके सीने में लगा दिया कब्र में। तो ये यही बताने के लिए कि ये इसको आज़ाद मिला है। वो ना तो ज़मीन लेकर गया, ना वो दौलत लेकर गया, ना कोई पैसा लेकर गया, सिर्फ वो एक निशान लेकर गया, वो जो सामने पड़ा हुआ है वो निशान लगा हुआ है, बस उसको मिलता है, उसी को सलाम है, उसी की इज्जत है, उसी की वजह से हम जिहाद करते हैं, उसी की वजह से हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है। ये किसी किसी को मिलता है ये तोहफा। ये अभी तक 10-11 जवानों को ये तोहफा मिल चुका है और हम कोशिश करते हैं कि या बारी ताला हमें भी ये तोहफा दे दे, हम भी निशानी हैदर तक पहुंच जाएं, ताकि क़यामत तक हमारा नाम रोशन रहे। इनका नाम क़यामत तक ना तारीख से जाएगा, ना आपके ज़हन से जाएगा, ना मुल्क से जाएगा, ना ये 6 सितंबर के दिलों से जाएगा। इनके अंदर 3 ऐसे जवान हैं, सिपाही हैं छोटे छोटे, वो जो 14-14, 12-12 हज़ार तनख्वाह लेने वाले थे, उनको भी ये निशानी हैदर मिला हुआ है। हवालदार मीरत जान है, सवार मोहम्मद हुसैन है, जो लाश नायक मोहम्मद महफूज है, ये सिपाही था, छोटा सा रैंक सिपाही जो गेट पर ड्यूटी देने वाला था, उसको भी ये आज़ाद मिला हुआ। वो देखो उनके नाम लिखे हुए हैं, उनको भी मिला हुआ है। आप ये नहीं सोचना कि सिपाही को नहीं मिलता, सिपाही को भी मिलता है, हवालदार को भी मिलता है, मेजर को भी मिलता है, ये जनरल साहब को भी मिलता है, अगर वो भी ये हासिल कर लेगा तो ये बात ज़हन से नहीं निकालना। जज्बा जहाद और हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी अगर आप नहीं जानते, आपके नेट में नहीं आता, आपकी किताबों में नहीं आता, कोई लेक्चर नहीं देता, कोई मौलवी नहीं बताता, कोई स्कूल में नहीं बताता, लेकिन आपने जहाज की किताबों का नहीं है, जहाज की आपने, इसलिए हमारे नबी की सुन्नत है, इसको नहीं छोड़ना बेटा, ये को नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना आप जहाज की किताबें पढ़ो, आपको पता चलेगा कि जहाज क्या चीज़ है। जहाज कुर्बानी है, ये कुर्बानी है, ये जान की कुर्बानी है। हाथ को ऊपर जान रखकर आगे चले जाना, बम्बों में चले जाना, आग में चले जाना। ठीक है बेटा, ये आप सोचते रहना कि हमने इस मुल्क के लिए जहाद करना है। और जहाद किस शक्ल में होता है? एक तो हुब्बुल वतनी से होता है, एक बंदूक उठाकर दुश्मन के सामने लड़ने से मिलता है। हुब्बुल वतनी से भी जहाद मिलता है, ये अपने हाथ से नहीं जाने देना बेटा। ये आपको हम बता दें, हम बूढ़े हो गए हैं, 2 साल 7 साल पहले ये जंगें हुई थी, आपके बुजुर्गों ने भी देखी थी जंगें, आपको नहीं पता ये जंग क्या होती है। जंग में ईंट से ईंट बच जाती है, बारिश होती है बम्बों की, और आग की बारिश होती है, उसके अंदर खेलना पड़ता है। ये ऐसे नहीं होती हैं जंगें कि बैठकर जंगें होती हैं। ये मिसाइल भी चलाएंगे तो आपके ऊपर मिसाइल भी आकर गिरेगा, अगर आपने एक छोड़ लिया आपके ऊपर भी एक आ जाएगा। तो ये बात नहीं सोचना कि आजकल मिसाइल की जंग है, वो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देना। जंग खून लेती है, ये ज़मीन खून मांगती है, तब ये हमारे हिस्से में आई है। इसके लिए मेरे बच्चों ये चीज़ कभी नहीं सोचना। ये जवानी है, ये पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्कों की फ़ौज ने भी पाकिस्तान की फ़ौज को माना गया। पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है कि हम ही इसके नारे मारते हैं, गैर मुल्की फ़ौज गैर मुल्कों के फ़ौज के डिपार्टमेंटों ने भी ये हमें आज़ाद दिया हुआ है। ये गैर मुल्क से मैं लेकर आया हूँ, ये तोप खाने के लिए है, ये खाने का होगा, ये नहीं है। गैर मुल्क ने पाकिस्तान की फ़ौज को रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है कि वाकई पाकिस्तान की फ़ौज नंबर 1 है दुनिया के अंदर, और हमें कहीं भी बुलाया जाए इस्लामी मुल्क में, हम उसके लिए जान कुर्बान करेंगे। आधी रात को भी बुलाएगा, सऊदी अरब बुला ले। सबसे अहम चीज़ हमारी सऊदी अरब है, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है और हमारा खाना काबा है। और बैतुल मुक़द्दस में भी अगर फ़लस्तीन हमें बुलाएंगे हम वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बैतुल्लाह मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। हम फ़लस्तीनियों की भी हमायत करते हैं, हम कश्मीरियों की भी हमायत करते हैं, वो भी हमारा खिता है। ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो ना? ये देखो, ये गैर मुल्कियों ने मुझे दिया हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं दिया हुआ। ये कुरान की आयत लिखी हुई है, ये गैर मुल्कियों ने मुझे दिया।
ये सऊदी अरब ने मदीना मुनव्वरा में जंग लड़कर मुझे दिया। ये 5 रुकन इस्लाम के हैं जो निशानी हैदर के ऊपर लगे हुए हैं। वो देख लो 5 रुकन है। ये 5 रुकन हमारे नबी की निशानी है। वो भी हमारे नबी की निशानी रखी हुई है निशानी हैदर में। ये 5 रुकन हमारे हैं। ये मदीना मुनव्वरा के अंदर नबी पाक के रोज़े के अंदर दाश ने हमला कर दिया था दुश्मन ने। हम मदीना शरीफ के अंदर भी दाश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और हम बहादुरी से ये उनसे आज़ाद लेकर नीचे उतरे हैं। ये ऐसी बात नहीं है बेटा। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको हम कहते हैं बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म, ये मुझे मोहम्मद अली जिन्ना का गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सिविल अवार्ड भी दिया हुआ है। ये जिन्ना साहब बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए हैं, ये सिविल अवार्ड भी दिया है। ऐसी बात नहीं। ये सितारा जुर्र निशानी हैदर से जो नीचे का अहदा होता है जो जिंदे को मिलता है। निशानी हैदर जिंदे को नहीं देती हैं, निशानी हैदर शहीद होने वाले को देती हैं। सितारा जुर्रत गाजी को देते हैं। ये अल्लाह अकबर बीच में लिखा हुआ है। ये हमने ऐसी जुर्रत का मुकाबला किया कि हमने सितारा जुर्रत को भी लेकर दिखा दिया। ये तमगा जंग भी लेकर दिखा दिया। ये जंगें हमने लड़ी हैं बेटा, ये तमगा जंग है। ये तो ये सजाओ आप, ये सीने के ऊपर सजाओ, ये जंगें लड़ो। अगर होती है तो पीछे नहीं हटना। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी जितनी भी ये मांगता है देनी है, आगे बढ़ बढ़ के देनी है। ये नहीं समझना मैं मार जाऊँगा। मैं तो रोता हूँ कि यार मुझे शहादत क्यों नहीं दी है। मैं तो शहादत मांगता हूँ, मुझे शहीद कर दो। तो शहादत कैसे मिलती है? तो ये हिंदी के मकाम के ऊपर ये मशरक़ी पाकिस्तान में हिंदी के मकाम के ऊपर एक हमारा शहीद हुआ था मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। उसको हम 26 के 28 साल के बाद जब निकालने के लिए निकाल कर लाए थे तो वो जिंदा निकल आया था, सिर्फ आंखें बंद थी उसकी। मोहम्मद अकरम शहीद हिंदी के मकाम से हम उसको बाहर निकाल कर लाए थे। वो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे अभी हमने उसको दफन किया है। वो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे अभी हमने दफन किया है। ये आप हम बूढ़े हो गए हैं। मैं आज भी ये गन लेकर ये ऐसे खड़ा होता हूँ भारत के सामने, बॉर्डर के ऊपर जाता हूँ कि आओ मेरे साथ लड़कर दिखाओ, आओ मेरे साथ लड़कर दिखाओ। मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन दिल जवान है। ये दिल पाकिस्तान है, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। ये पाकिस्तान को सलाम है बेटा, पाकिस्तान को सलाम, पाकिस्तान को सलाम करना बेटा, इसको इज्जत देनी है। और ये मोहम्मद अली का बनाया हुआ पाकिस्तान मर मिट जाना है। कुछ भी हो जाए, टैंक के नीचे चले जाओ, कुछ नहीं होगा, जन्नत में चले जाओगे। लेकिन इसको बचाना है, डरना नहीं है दुश्मन से। दुश्मन हमारे से 14 गुना ज़्यादा है लेकिन हम नहीं डरते उससे। आज भी हम ऐलान करते हैं कि हमला करते देख लो, वो हमला नहीं करता। 71 के बाद उसने हमला नहीं किया। ये बैठे नौकरी करने के लिए पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। जनाब अनवर अली साहब जिंदाबाद। यौम दिफा के हवाले से और पाक फौज के हवाले से जनाब अनवर साहब की मालिश को बताने से मैं उन्हें दूर भागा के तमाम स्टाफ और अल्लाह की तरफ से इस पुरवकार तकरीब में शिरकत करने पर खुशामदीद पेश करता हूँ। आज की कुर्बानियाँ हमें एक अजीम फौज और एक अजीम फौज की याद दिलाती हैं। राह हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। लगाए आग दिवाए थे आशियाने को, इंडिया वाले जो थे लगाने आग दिवाए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितने बहारों पे रख दिए तुमने। तुम्हें वतन की दुआएं सलाम कहती हैं। चने जो हो गए बेटा सिर्फ 1 मिनट, चने जो हो गए शहादत का जाम तुम कर तुम। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा,
अभी तुम्हारी शुजाअत के झूमसे होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, पूरे खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राह हक के शहीदों, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे शहीद हो के क्या माँ को सिर खड़े तुमने। जनाबे हजरत ज़ैनब गवाही देती हो, शहीदों लगी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माएं सलाम कहती हैं। तरावत के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तरावत के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। वस्सलाम। पाकिस्तान पाकिस्तान। ये थे रईस मदरसा जनाब आसिफ अली भट्टी साहब, जो आज के दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब आज की इस तकरीब के आखिर में इस तकरीब को कामयाब करने में और जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई। वैसे तो तमाम बच्चे ही शाबाश और इनाम के हकदार हैं, लेकिन क्योंकि मुकाबला होता है तो इसमें पोजीशन जो है वो हम सब बच्चों को नहीं दे सकते। पोजीशन जो है एक या दो बच्चों को ही दी जा सकती है। वैसे तमाम बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी और आउटस्टैंडिंग थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारे स्कूल में जो भी प्रोग्राम होगा उसमें तमाम बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अब इस प्रोग्राम के आखिर में जो है फर्स्ट, सेकंड और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट्स को मेडल देने के लिए, उनको प्राइज़ देने के लिए मैं दावत दूँगा रईस मदरसा जनाब आसिफ अली भट्टी साहब से और हमारी इस तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब अनवर अली साहब से कि वो आएँ और अपने दस्ते मुबारक से जो है वो मेडल्स दें बच्चों को। जी, उसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो परफॉर्मेंस थी वो थी उमैर की। उमैर आए और अपना मेडल जनाब चीफ गेस्ट अनवर अली साहब से और साजिद अली कबीर अम्मा भी तकारीर भी बहुत अच्छी बच्चों ने की, लेकिन उसमें जो है अली अहमद की तकरीर जो है उसकी जो है पहली पोजीशन है अली अहमद। क्विज में तमाम बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और क्विज में काशिफ की जो टीम है वो विनर रही। काशिफ और कैप्टो जो है बहुत अच्छी है, बच्चों ने परफॉर्म किया। तो कैप्टो में जो कैप्टो के लीडर थे, गाइड थे, वो है सलमान। वो जो है तमाम बच्चों की तरफ से मेडल जो है वो हमारे हिसाब से वसूल करें। तकारीर में मुमताज जो है वो भी उसकी तकरीर भी बहुत अच्छी थी, तो वो भी अपना मेडल हमारे हिसाब से जो है वो वसूल करें। करेंगे अब मैं आज की तकरीर के आखिर में 6 सितंबर 1965 के 14 के मकसद के लिए, उनके सालों के लिए और इस तकरीर के आखिर में दुआ के लिए मैं दावत दूँगा। मुतला सैदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ। जो आप पंजाबी मुसलमान को जमा कराएंगे, फिर जमा कराएंगे और ये बस की जगह जमा कराएंगे और उसके बाद 9 सितंबर को इंटरव्यू किया आ रहा है, तो उसके आने से पहले हमें काम मुकम्मल कराना है और उसकी एक से काफ़ी हद तक काफ़ी का गार्डन आपके साथ रब्ता करें तो उनको आप दिखा सकें कि प्रोग्राम का आयोजन ये है और उसकी ये पोजिशन है। और वैसे भी क्लास में ज़्यादा लोग अंदाजा हो जाएगा क्लास में शासन काम वो पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसके पद्धति में बहुत सा बच्चा अब सब बच्चे जैसा इस्तेमाल करने दिया करें, सब बच्चे पढ़े मेरे पास और उसके बाद आराम से
اور تین بتا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اور اس طاقت اور جاننے کی کی آواز سے آتی پائی ہے مولا کریم مقصد کے اجلاس کرنے کی جناب بلند کر کرنا اور ان کی آواز سے سنا پر اپنا بلند ہے مولا کریم اسی طرح ان کے نظروں پر سننے کی وسیع ادا کرنا اے العالمین تمام اہل پاکستان کو اصل وطن کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس کے لیے مرد کی وسیع ادا کرنا یا العالمین ہم سب یہ وہ کام کرنے کی ترتیب ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یا رب العالمین ہم سب کو ان کے مسئلہ کرنے کی ترتیب ادا کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا اللہ تعالی 1965 میں پاکستان کو عزت اور عزت عطا فرمائی اور جسموں کو اور پیغام کو آپ دلا دیا لیکن ابھی کر دیا مولا کریم اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو دن دنیا اپنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو سلامت رہے اور کامیاب رہے وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ یہ تو غلام مرتضیٰ مہدی صاحب جو लाइनों में जाना है, प्रेयर करते हुए जाना है, प्रेयर करते हुए जाना, प्रेयर करते हुए मूवी बन रही है आप लोगों की और प्रेयर करते जाना, मूवी बन रही है। हाँ आप किस क्लास के